Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound. This is Kanchan here and I welcome you all to the Swiflearn, which is India's most instant learning destination providing you classes for 1st to 10th. Or I can say that the one and only destination providing you the concept-based learning. So let's start today's class, and today we are going to do the session number 3 of matrices. So far we have done the 2 sessions in which we have just look for the basic things, how to add, how to subtract, how to take out the transpose. Okay, so in the today's session we will be doing the multiplication, and I think that is the most important part of the matrix. Okay, so till then who all are online, you can drop me a message, hello ma'am, hi ma'am, kaise hain aap? Okay, and till then let me tell you more about Swiflearn. So Swiflearn is providing 100% live and interactive classes. We have personalized attention batch where we don't take more than 6 students. After that, a dedicated academic mentor team is there, which is working and tracking. I mean to say, they are tracking is the student lacking somewhere or not, and if the student is lacking, they are working on it. After that, when I talk about syllabus, so CBSE, ICSE, state board, all the syllabus are covered here. After that, when I talk about detailed progress report, so it is something PTM. We all know that what is PTM, parent teacher meeting. So when I talk about parent teacher meeting, so in this we will be providing you the detailed progress report of each and everything which you are doing in the class. Okay. After that, SATs. So very important one. Once you will be in the Swiflearn, you can compete with the same standards student of your class. I mean to say, if you are here, तो आप अपनी ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं with the help of SATs. And I think this is the most important feature of the Swiflearn. यहाँ पर आपको पता चलता है कि where you are actually, आप अपने क्लास के अदर स्टूडेंट्स में कहाँ पर मैटर करते हैं. ठीक है. After that, take unlimited practice test. So Swiflearn is providing you unlimited practice test along with the subjective test. So it happens sometimes आपने NCERT ख़त्म कर ली है, जो आपकी मेन बुक्स हैं, कोर्स बुक है, वो आपने ख़त्म कर दी हैं. अब आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए करने के लिए, प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, तो डेफिनेटली Swiflearn will be providing you all those things. So what you have to do, you have to book a free trial class. Okay, for that you can go to the description box, or simply you can go to the Google, अब वहाँ पर भी टाइप करके एक ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए, those who are new to the channel, kindly subscribe it, press the bell icon. Yes, bell icon को press जरूर कीजिएगा so that you will never miss any update. Hit the like button को भी hit करना है. Comment, yes, comment भी कीजिए. Your suggestion, your queries are always welcome here. And when I talk about share, so you can share it to your friends, to your classmates also, so that they also get to know about the Swiflearn YouTube channel. Okay, so yes, let's start the today's topic, that is matrices part 3. So today we are going to learn about the multiplication by a scalar or a real number. Find the multiplication of how we can multiply two matrices. Explain the identity matrix क्या होती है multiplication की. After that, some problems, and after that, obviously, properties. Okay, so far we have learned about the transpose of the matrix. पता है ना, रोज को कॉलम से, कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दीजिए तो आपका क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है. एंड सिमिलरली वी हैव डन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, सो नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम. हमें पता है जब हम एक मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, वी गॉट द ट्रांसपोज. इफ ए इज द मैट्रिक्स, so उसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, ए सुपरस्क्रिप्ट टी. ओके, a raised to the power t, और आप a t भी बोल सकते हैं, दैट इज द ट्रांसपोज. नाउ दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब वो पहली चीज, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और दूसरा हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होगा. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब आपको पता है, अगर a एक मैट्रिक्स है और b एक मैट्रिक्स है, तो a का 1 1 इज इक्वल टू b के 1 1, मतलब a का पहले एलिमेंट का पहले रो का पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वही b के पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. तो बहुत सिंपल सी बात है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है और सारे एलिमेंट सेम सेम है, तभी तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे. दैट इज द थिंग. ओके, नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव डन इट. कब एडिशन कब होता है, जब सेम ऑर्डर होता है. ठीक है, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. दिस वी हैव डन सो फार, ये हमने किया हुआ है. एडिटिव आइडेंटिटी आपकी नल मैट्रिक्स भी कहलाती है. What is the meaning of additive identity? It means that last session में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था,
कि जब हम चलो मैट्रिक्स को अगर हम छोड़ दें तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि मैं किसी नंबर में क्या ऐड करूं कि मेरे पास वही नंबर सेम आ जाए, दैट इज कॉल्ड, हम ना वही तो कहते हैं हम, 5 में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 5 मिल जाए, उससे वही आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए, मीन्स दैट 4। तो अगर मैं यही कंसेप्ट मैट्रिक्स में भी लेकर आऊं कि एक मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वही मैट्रिक्स सेम मिल जाए, सो दैट्स अ सिंपल लॉजिक, नल मैट्रिक्स। ओके, सो नल मैट्रिक्स में जिसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 0 0 0 0। ओके, चलिए, एडिटिव इनवर्स भी आपको बताया था कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का एडिशन इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ बी है और बी को हम एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, किसी भी सेंस में हम कह सकते हैं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मतलब अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और मेरे पास अगर जीरो आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रही है मुझे, मीन्स नल मैट्रिक्स मिल रही है, तो एट दैट टाइम आई कैन से दैट जो ए और बी है वो क्या है, आपके एडिटिव इनवर्स है। सिंपल सा लॉजिक है ना, 4 प्लस -4 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 4, उसका कॉन्जुगेट। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें अगर मैं एक बात करूं तो ए की वैल्यू सिंपल सा बात है कि माइनस बी के इक्वल होनी चाहिए, मतलब ए के और बी के एलिमेंट सेम होने चाहिए, बस उसमें -1 होना चाहिए। इट मीन्स दैट दे बोथ आर एडिटिव इनवर्स। ठीक है, डू यू नो हाउ दीज एनिमेशंस आर मेक? किसी भी एनिमेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक एनिमेशंस की बात करूं, ओके, कोई भी एक्स वाई जेड, या आप कोई कार्टून में कोई एनिमेशंस देखते हैं या आप किसी गेम में कोई एनिमेशंस देखते हैं, तो दे ऑल आर बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स। ठीक है, सो टू बी मोर प्रिसाइज एंड परफेक्ट, मैट्रिक्स इज हेल्पिंग। मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि मैट्रिक्स इज अ टर्म। अभी आपको लगेगा कि हम तो नॉर्मल मैट्रिक्स में ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये क्या हेल्प करेगा, बट यही जो छोटे छोटे आपके पास बेसिक्स होते हैं, यही आगे जाके आप इनको बहुत हाई ऑर्डर में पढ़ के ये सब एनिमेशंस में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए, so today we will be learning about the multiplication. That is the most important thing, I think, most I think the complicated one, at the same time important one. तो इसको देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर और रियल नंबर। तो स्केलर मींस कोई भी एक रियल नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी रियल, माइनस भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मुझे किसी स्केलर से या किसी रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सेम थिंग वही होगा कि जो बाहर जो स्केलर नंबर है वो हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। जैसा हम करते हैं ना कि हमारे पास ब्रैकेट है 3 और मेरे पास यहाँ पे 4x - 2 है, तो हम वही तो करते आए हैं, हम 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, हम 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। वी आर एक्चुअली यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगा रहे हैं हम। सो सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो जाएगा। देखिए 4 जो है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आई है, ये स्केलर और एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल, ये बहुत सिंपल है, इसको समझने में आई डोंट थिंक कोई इशू है। एक नंबर है और आपके पास एक मैट्रिक्स है, यू आर मल्टीप्लाइंग जस्ट बोथ ऑफ देम। ठीक है, चलिए, अब ए है, बी है, सी है, तो आपको a प्लस 2b माइनस 3c निकालना है, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2b निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से 2b देख लेते हैं। 2b क्या हो जाएगा, -4 -2 2 4, यही हो जाएगा। इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3c निकाल लेते हैं। 3c का क्या हो जाएगा, 3c, तो 3c क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 0 ही रहेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। हम इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 -1 ज़ा -3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस 2b माइनस 3c। तो a की मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, a क्या है 1 प्लस 2b कितना है -4, 3c कितना है -3c, तो -0। ये मेरे पास एक एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो देखने की ज़रूरत है कि तीनों का ऑर्डर 2 × 2 × 2 है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना कि ऐड कब होगा,
ऐड तब होगा या सब्ट्रैक्शन तब होगा जब सारी मैट्रिक्स का जिनको हम ऐड कर रहे हैं और जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट और कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देयर इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन। ओके, सो सिंपल है। उसके बाद इसका 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, फिर प्लस -2, ठीक है, और 3c -9। ओके, चलिए इसको बंद कर देते हैं। अभी एक और एलिमेंट लिख लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसका -2, इसका +2 और इसका -6। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, लास्ट वाले का 2 +4 -3, माइनस है, -3 -3। ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है और ऑलरेडी मेरे पास एक माइनस में एलिमेंट है, तो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। तो ये आपका कुछ, आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा। 1 -4 आपका -3 हो जाएगा, यहाँ पे -9 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया, और 2 + 4, 4 + 2 6, 6 + 3। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज हाउ। ओके, और अगर कोई कैलकुलेशन में कहीं पे कोई गड़बड़ हुआ होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, यस बिल्कुल सही, 10 आ रहा है लास्ट में। ओके, सो बाकी सब कुछ सही आ रहा है, लास्ट में 10 आ रहा है, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज 3 प्लस ओके 4 + 2 6 + 3 9। ओके, तो यू कैन चेक इट। ठीक है, चलिए कंपैटिबिलिटी। अब अगर मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। एडिशन में तो हमने बोला कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट, बट दोनों मल्टीप्लिकेशन कब हो सकते हैं। तो दो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ए एंड बी और मैं आई वांट टू मल्टीप्लाई देम, तो मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप एक एक मैट्रिक्स ले लें ए, आपने एक मैट्रिक्स लिया उसका ऑर्डर है 2/3, और आपने एक मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको पता है सेकेंड लिया जाता है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज टू द सेकेंड। जो पहले वाली मैट्रिक्स है, आप अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाले के रो का जो नंबर है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। समझ में आया, ये कंडीशन होती है। ठीक है, सो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास मैट्रिक्स है उसका कॉलम, और जो राइट हैंड साइड में आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका रो, तो इधर का कॉलम इधर का रो, अगर ये दोनों सेम सेम है तो मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर ये ऐसे होता, ए इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू 2/3 और b इज इक्वल टू 2/3, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, मैं नहीं कर सकती इसको। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लिकेशन करने की क्या कंडीशन है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, दैट्स इट। अभी क्यों ऐसा बोले जा रहा है, अभी इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, तो ए के क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 2/2 है, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में सब कुछ पॉसिबल है। 2/2 है और 2/2 है, तो ऑब्वियसली इसका यहाँ पे 2 है, इसकी कॉलम 2 है और इसका रो 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यस, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। एंड जो इसका आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, उसका ऑर्डर बच्चों, ये जो इधर का रो है और इधर का कॉलम है वो इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आपकी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो सब कुछ 2 2 है, तो ऑब्वियसली इसका भी 2 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं सपोज कहूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स 2/3 की है और एक मैट्रिक्स मेरे पास 3/2 की है, राइट, तो इसका रो और इसका कॉलम इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 2/। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ओके, स्टेप 1। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा। ये जो है, ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा।
पहला रो और पहला कॉलम। इससे मुझे मिल जाएगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट। क्या मिल जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट। सिंपल। पहला रो, तो पहले रो का क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। लेट मी चेंज द कलर। 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगेन बोल रही हूँ, ये जो इसका फर्स्ट रो है, ये जो इसका फर्स्ट रो है और ये जो इसका फर्स्ट कॉलम है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई होने का क्या तरीका है? 3 विल गेट मल्टीप्लाइड टू द 1, सो इट इज वेरी सिंपल। 3 विल गेट मल्टीप्लाइड टू द 1, so 3 ones are 3, then we will put a add sign over there। then इसका जो सेकेंड एलिमेंट है 4 और इसका जो सेकेंड एलिमेंट है, मतलब जो सेकेंड रो, फर्स्ट रो में जो सेकेंड एलिमेंट है और इधर जो सेकेंड एलिमेंट है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मिल गया? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं अब ये बात करूं कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वही आएगा सेम। देखो ऊपर वाला लिख रहे हैं तो ऊपर वाला ही आएगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा सिंपल 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, साथ साथ आप देख सकते हैं मैं कैसे लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैंने किया 3 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन व्हाट आई डिड, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये इसका सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस रो का काम था, इसका खत्म हो गया। तो फर्स्ट जो रो आती है, वो फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है, उसके रोज को आप इंडिविजुअली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट इट। ठीक है, सिंपल है। चलिए इसको देखें। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, देखिए 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 आ गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड एलिमेंट कैसे होगा, देखिए थर्ड एलिमेंट के लिए सेम होगा। थर्ड एलिमेंट के लिए आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड रो। थर्ड एलिमेंट के लिए आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड रो। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, ठीक है, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए थे। देन 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। देन अगेन अगर मैं इसके फोर्थ एलिमेंट की बात करूंगी तो 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हो रहा है। अब हम सेकेंड रो के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कैसे याद रखना है, चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कैसे याद रखना है। देखिए जब आप ऊपर वाले के साथ कर रहे हैं तो नीचे मानिए कुछ भी नहीं है। जब आप पहले वाले के साथ कर रहे हैं तो मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या किया, आपके पास सिंपल सा लॉजिक था, आपने इसको इसके साथ भी किया और इसको इसके साथ भी किया, तो आपको ये दोनों एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, मिल गए। आफ्टर दैट कंसिडर दिस कि आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है। आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट इट। क्लियर है? आप इसको यहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो क्या किया हमने, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक रो को पहले दोनों कॉलम से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन सेकेंड रो को कॉलम से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज हाउ द मैट्रिक्स वर्क, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वर्क। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। In our previous video, we have seen what matrices are and how we label them. However, in order to use them efficiently, we must first be able to carry out simple operations with them, which is what we will be exploring in this video. First up is addition. Here you can see two different pairs of matrices. The first one is made up of two similar ones, which means that they have the same number of rows and columns, while the second one isn't. A very important thing to understand is that in order to add up two matrices, they must be similar. Therefore, we can add up the first pair, but not the second. After we have made sure that the two have the same dimensions, we can then proceed with the actual addition, which is a simple and straightforward process. The rule dictates that we must add together the corresponding Yes, I think we have done the addition part, so I will jump to the result multiplication part only. If the number of columns, yeah, so here comes the we can multiplication. only multiply together two matrices
if the number of columns of the first one is equal to the number of rows of the second one. Therefore, we can multiply together the first pair of matrices, but not the second. What we then have to do is a little trickier than the rest. We take the first element of the first row of matrix A and multiply it by the first element of the first column of matrix B. It is very simple. First from here and we then first take from the here. second and the third and do the same. The row is going on and the column is After going that, on. we add the results and place them in the first row, first column of the result matrix. We then move down and do the same for the second row of A and the first column of B, placing the results in the second row, first column of the result matrix. We do that with all the possible combinations of rows of A and columns of B, placing each result in the correct spot on the results matrix. We can then notice that the result matrix will have the same number of rows as A and the same number of columns as B. So, this is how you add and multiply matrices. However, before doing any operation, remember to always check whether or not you can add or multiply together the matrices you are working with, as that is usually the part that catches learners off guard. If you liked the video, give it a thumbs up and I hope it is clear. Yes? The product of two matrices on the Yeah. Now the multiplication of two matrices. Let's see that how we can do this. Okay, so it is very simple. If I talk about here it is 1, here it is 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So let's do the multiplication. How I'm going to do the multiplication? Very simple. First row will get multiplied to the first column. It means that it will be 1 into 4 plus 1 into 6. Okay, got it? Now, for the second part, again this row will get multiplied to this column. So what will be the second element? 1 into 5 plus 1 into 7. So this was 10 and this was 12. So I got 10 and I got 12. Clear everyone? Okay. Now again, let's do with the second row. For the second row, I have 2 and 3. Okay. And here I have the first column, 4 and 6. So what I'm going to do? I'm going to do 2 multiplied by 4 plus 6 multiplied by 3 or 3 multiplied by 6. It is moreover the same. 3 multiplied by 6. Now again, the second part, 2 multiplied by 5 because second row 2 multiplied by 5 plus 3 multiplied by 7. So that is 5 multiplied by 2 is 10, 3 plus 7, 21. That answer will be 31. So I can say that this is basically the ओके नाउ अगर देखिए आई कैन चेंज इट, मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ इसके एलिमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो चलिए एक नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं. ठीक है, चलिए इसको करके देखें. बहुत सिंपल है. देखिए फर्स्ट दिस एलिमेंट विल गेट मल्टीप्लाइड टू this element, this first row will get multiplied to this row. Can we write the answer? चलिए आंसर्स को प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं. तो दैट विल गो लाइक 2 into 0 plus 0 into 3. So first element will be 0. Now the second element again इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट विल बिकम 2 multiplied by -4 plus 0 multiplied by 4. Okay, now comes to the second part. Second part में अगर हम देखें कि 2 multiplied by 3 2 multiplied by 3 plus -1 multiplied by hold on, 2 multiplied by 0, that 2 multiplied by 0 plus -1 multiplied by 3, again 2 multiplied by -4 plus -1 multiplied by 4. Okay, this is how it will go like. इसका रिजल्ट भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं. 0 आ रहा है पहला, दूसरा -8 आ रहा है, 2 4 -8 होगा, तीसरा कितना आ रहा है -3 आ रहा है. ऑब्वियसली पहला टर्म 0 हो जाएगा और लास्ट में 12 आ रहा है बिकॉज 2 4 8 एंड 8 -4 इज 12. क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज हाउ. बहुत ईजी होता है मल्टीप्लीकेशन. आई नो थोड़ा सा लगता है कि इट इज टिपिकल वन, बट बिलीव मी इट इज वेरी ईजी. ठीक है, तो चलिए नाउ आई हैव ए बी एंड आई हैव टू फाइंड आउट ए बी एंड आई हैव टू फाइंड बी ए. दोनों फाइंड आउट करने हैं. चलिए
और हमें ये भी बताना है कि आर दे इक्वल और नॉट। ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका मल्टीप्लीकेशन होता है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो चलिए प्रूफ भी कर देते हैं। चलिए पहले ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देख लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन -2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके, प्लस 3 सॉरी 4 multiply by 1 plus 1 multiply by 3 and 4 multiply by 2 plus 1 multiply by 5। तो आपके पास क्या आ गया, ए बी आपके पास आ गया -2 प्लस 6 प्लस 9, ओके, -4 प्लस 15, 4 प्लस 3 और 8 प्लस 5, ये आपके पास a इंटू बी आ गया। तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही b इंटू ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर ऐसे उल्टा करने में कंफ्यूजन होता है बच्चों, तो पहले b लिख लीजिए 1 3 2 5 और फिर आप लिख दीजिए -2 3 4 एंड 1। ठीक है, फिर आप इसको करिए, तो ऑब्वियसली आंसर सेम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं एंड आंसर विल नॉट बी द सेम। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों के आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, चलिए, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को नहीं कर रहे हैं मल्टीप्लाई, दैट इज द रीजन यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बट यू आर डूइंग इट रो एंड कॉलम वाइज, सो डेफिनेटली दैट विल बी अ डिफरेंट। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल सा लॉजिक है। In a matrix multiplication, the unit matrix I is known as a identity matrix. So on multiplying कि क्या किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि ऑर्डर सेम चेंज ना हो, मैट्रिक्स चेंज ना हो। तो इट मीन्स दैट कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई, मतलब उसकी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे वही मैट्रिक्स दोबारा मिलेगी। क्लियर है? तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2y। ठीक है, वेर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आई सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको इक्वेशन बना के दे देती हूँ, आई होप आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 है, -1 है, -1 है और 3 है। अगेन ए स्क्वायर निकालना है, तो ए से ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, ठीक है, और -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? +1। क्लियर है? मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये वाला जो 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, ये वाला 1 जो है ये वाला 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या मिला मुझे मिला 1। ओके, और जब 1 मिला तो 4 + 1 5 हो गया। नाउ अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, देन -1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी -3। ठीक है, इजी है। नाउ -1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2, so -1 will get multiplied by 2, so I will get -2, and 3 will get -3, so I will get again -3. Okay, now -1 will get multiplied by -1, so my answer will be +1, and then 3 will get multiplied by 3, my answer will be +9. Okay, so what I got 5 -6 -5. Actually, I'm having a very bad cold, so that is the reason. Okay, -5, and yes, of course 10. Okay, so I think it will be something like that, or you can check it. Okay, so आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इजी है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि मैम सब कुछ सही भी कर रही है या मैम गलत लिख रही है। ठीक है, बिकॉज इट्स मोर ओवर द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेट मी चेक इट वंस मोर। ओके, तो इसको एक बारी फिर से देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, एक बारी क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिकॉज ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4,
ओके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, तो 4 + 1 5. ठीक है, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय -1, so 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 एंड अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वही मैं कह रही हूँ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है. 2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नहीं नहीं सही 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 जा रहे हैं, सही आप एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 3, सही जा रहा है बिल्कुल. देन -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल सही है. और -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज +1, 3 3 9. ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट द 3a. मैं 3a भी निकाल सकती हूँ. 3a निकालने के लिए जस्ट s को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगी, तो क्या हो जाएगा 6 -3 और 9. ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गई. और i तो आपको पता है i कितना होता है, i होता है 2 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाएगा. तो इसमें आ जाएगा 2 0 0 2. ठीक है, अब आपको इन तीनों को अरेंज करके प्लस माइनस करना है और ये आप करके देख सकते हैं. ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको देख सकते हैं. ओके, ठीक है, कहीं पे गड़बड़ होगा तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि मैम आपने यहाँ पे गलत किया था. ओके, मेथड मैंने आपको बता दिया, तो मोर ओवर थिंग इज दैट मैंने आपको मेथड बता दिया. ठीक है, तो अब कुछ बातें आपको याद रखिए कि अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास m इंटू एन ऑर्डर का, और अगर बी मैट्रिक्स है आपके पास n इंटू पी ऑर्डर का, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसका n और इसका n क्या है, सेम है. ठीक है, तो प्रोडक्ट इज पॉसिबल. बट जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m इंटू पी होगा. इसका m और इसका p ऑलवेज. तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका m इंटू एन ऑर्डर है, दूसरी मैट्रिक्स है n इंटू पी, सो येस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू पी, मतलब इतनी रोज हो जाएंगे और इतने कॉलम्स हो जाएंगे. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, चलिए प्रोडक्ट पॉसिबल है, चलिए देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं है. तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 इंटू 2, और इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 इंटू 1. यस, 2 इंटू 1, यस प्रोडक्ट इज पॉसिबल. ठीक है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, और प्रोडक्ट पॉसिबल है और उसका आंसर देखिए. और आंसर क्या आ रहा है, आंसर रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, रिजल्टेंट आंसर आएगा 2 इंटू 1, मतलब 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होंगी यार. ठीक है, देख सकते हैं. देखिए 3 इंटू 5 को चलिए कर लेते हैं, इसको करके देखते हैं. 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4. ठीक है, और दूसरा 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, तो आ गया. ये आपके पास आ गया 3 2 जा 6 26, और ये आप कट गया, ये आपके पास आ गया 0. तो देखिए यहाँ से आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है. क्यों, क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर था 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर था 2 इंटू 1, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 1. ओके, क्लियर है बच्चों इतना? चलिए, प्रॉपर्टीज क्या है, अगर 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी आर कंपैटिबल, अगर तीनों कंपैटिबल है मतलब तीनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ए बी सी इज इक्वल टू ए. पहले आप चाहे क्या करें, चाहे आप पहले बी सी को करें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये कंपैटिबिलिटी होता है. ठीक है, और इन जनरल, लेकिन जनरल में अगर हम बात करें तो दे आर नॉट कम्यूटेटिव. जनरल में अगर हम बात करें तो दे आर नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है, क्लियर है जी? चलिए, और एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव तो यहाँ से आपको पता ही चल गया ना, ये एसोसिएटिव है. ओके, अब अगर आपके पास a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट b इज इक्वल टू सी. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इन्होंने बोला कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम यही तो करते हैं ना, हम कहते हैं कि 2x इज इक्वल टू, मैंने बोला 2x इज इक्वल टू 2y, है ना. तो अगर 2 और 2 इक्वल है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि x और y भी आपस में इक्वल होंगे. बात समझ में आ रही है? ये लॉजिक लगाना. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से a से a काट दो और बोलो b इज इक्वल टू c है, ये गलत होगा. ठीक है, अगर a भी 0 के इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो. ठीक है, दोनों ज़रूरी नहीं है. ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपने देखा होगा ना कि कई बार मैट्रिक्स को ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास नल मैट्रिक्स है.
ठीक है, दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो इट डजेंट मीन कि उसमें से एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है। नॉर्मल मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है, ये आपने पीछे देखा होगा, हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप ए बी प्लस ए सी करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी सेम। और सब्ट्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। चलिए, ये क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, बाकी आप करेंगे। तो ये वाला किससे मल्टी, सबसे पहले देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही होगा, क्योंकि जब इन्होंने फाइंड करने के लिए दिया है ये वाला इसके, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 × x, मैं इक्वेशन बना के दे दूंगी, 3 × x माइनस 8 × y। तो माइनस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 8y, मैं लिख सकती हूँ। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 4y। तो 9x माइनस 4y, तो ये मेरे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। और ये इन्होंने बोला ये किसके इक्वल है, -2 और 8 के इक्वल है, इक्वालिटी दे रखी है। सिंपल, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल है। आपने क्या किया, इसको 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और आप ऑब्वियसली देखिए इसका 2 × 2 ऑर्डर था और इसका 2 × 1 ऑर्डर था। जो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2 × 1 होगा, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 × 1 ही है, मतलब 2 रोज है और 1 कॉलम है। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये इक्वालिटी दे रखी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 8y इज इक्वल टू -2, और आप इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 4y क्यों, +4y आएगा, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब ये बन गई लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप इसको सेम बना सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आई लव एलिमिनेशन मेथड, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए होल इक्वेशन को, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस 8y इज इक्वल टू -2, और 2 9 ज़ा 18x, 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 8 2 ज़ा कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये काट दीजिए, 18 और 3 कितना होता है, 21। ठीक है, 18 और 3 कितना होता है, 21 ही होता है। सो 21x इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, ये तो आई थिंक कटेगा भी नहीं, 30, ओके। आई डोंट थिंक हमने कहीं गलत किया, तो ये कट क्यों नहीं रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3x माइनस 8y, 9x प्लस 4y। ठीक है, -2 है, -8 है, तो 3x माइनस 8y इज इक्वल टू -2, एंड 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है, काटने की साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये आ रहा है 16 माइनस 2, दैट इज नथिंग बट 14। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 14/21। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, लेट मी चेक, यहीं पे चेक कर लेते हैं। नहीं, आपके x की वैल्यू आ रही है 2। ओके, x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3x माइनस 8, 3x माइनस 8y, 9x प्लस 4y। So 3x minus 8y is equal to -2, और 9x plus 4y is equal to 16। तो आप देख सकते हैं, आई थिंक, चलिए इसको किसी और, वैसे तो मेरे हिसाब से आना तो नहीं चाहिए, बट लेट्स डू दिस। ठीक है, आप देख सकते हैं, मे भी हो सकता है आंसर गलत हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इसको एक बार ही देख सकते हैं। यहाँ से इसको दोबारा करने की कोशिश करते हैं, सो सॉरी। ठीक है, दो एक और एलिमिनेशन करके देख लेते हैं एक बार। ऐसे तो आई डोंट थिंक ऐसे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। 3x माइनस 8y इज इक्वल टू -2 और 9x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 16y
तो एक कितना जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 माइनस 24y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा माइनस 6, और ये ऑलरेडी माइनस 6 था, ये था प्लस 4y आपके पास, और ये था आपके पास 8। ठीक है, तो आपने माइनस किया, आपने माइनस किया, आपने माइनस किया, तो ये आपका कट गया। ठीक है, ये कट गया, तो आपके पास ये कितना आ गया, 28 माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 14y। तो यहाँ से तो आपकी y की वैल्यू 1/2 तो आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू अगर आपकी 1/2 आ गई तो y की वैल्यू 1/2 रख के पुट करिए, 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू माइनस 2, 2 4 ज़ा 8, सो दैट इज 3x is equal to minus 2 plus 4, or x is equal to minus 2 plus 4, that will be nothing but nothing 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 but ये भी नहीं आ रहा है, 2/3 आ रहा है, राइट। तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो रहा है। देखिए y की वैल्यू तो सही आ रही है, आप x की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आप देख सकते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इजी, आप एक बारी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। सो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं, मैट्रिक्स आर ऑल्सो यूजफुल इन रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड डाटा। पॉपुलेशन आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भी मैट्रिक्स पढ़ा रही हूँ आपको यही बता रही हूँ। मोर्टेलिटी रेट बेसिकली पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जो हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर्टेलिटी रेट आप सबको पता होगा क्या होता है, मृत्यु दर, और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बाय फॉर प्लॉटिंग सर्विस। ठीक है, तो आज हमने ये सारी चीज़ें देखी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन है तो ये मैं आपके लिए दे रही हूँ। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, एडिशन करना, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, प्लस करना है, प्लस करना है। ठीक है, आप जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट ऐड द, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, आप कर सकते हैं, मैं आपको एज अ होमवर्क ये सारे क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या आप पॉज कर करके भी देख सकते हैं। क्लियर है सबको? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद द सेशन। और जो क्वेश्चन वो बीच में थोड़ा हुआ था, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, कि y की वैल्यू और x की वैल्यू में इतना चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, दोज हु आर न्यू टू द चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू इट, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। भाई आपको क्या करना है, और आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो। ठीक है, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, so till to the next session, take care, bye bye, we'll meet you soon with the session number 4 which is going to be the practice session, so वो आप लोगों को करना है। ठीक है, so bye bye, take care।